Students, I am Pooja and welcome back to our YouTube channel Ashish Tiwari. Today, through this video, we are presenting you a video lecture series on your subject Introduction to International Relations. This is your BA's Honours Political Science subject, semester 2nd, and this is your disciplinary specific course subject, which means it is very important because it contains course credit 4. You are getting 4 course credits course, so it is really important for you. First of all, let us understand the meaning of international relations. You see, the exact meaning of international relations is the relation between two countries. What is the relation between two countries politically, economically, financially? The sort of relationship they represent and their relations is what we call international relations. In this subject, we are going to study theories. What are the theories given by our scholars? What are scholars? Scholars are people who are highly educated in their subject. We can say क्योंकि ये पुराने टाइम के scholars थे, of 1800s and 1900s, तो उस टाइम में PhD degrees नहीं होती थी, but because they were so much educated in their subject, we can say that they were doctorate in their degrees. Okay, we are going to understand many concepts, how the meaning of international relations has evolved over time to time कैसे international relations बदलते आए हैं, कैसे इनका meaning बदला है, कौन कौन से नए perspectives इसके अंदर add हुए हैं, and debates. Somehow there are still many points in which debates is going on international relations, because now we know that in present times many sort of subjects have been evolved, which one of which is geopolitics. It is a very important and very debatable topic. It was only for an instance. Okay, तो अगर आप DU सोल रेगुलर NCWEB या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जिसके अंदर ये सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, देन दिस वीडियो सीरीज इज स्पेसिफिकली फॉर यू. ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए ही बनाई जा रही है. आपके इस सब्जेक्ट के अंदर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे. इस सब्जेक्ट के अंदर है 4 यूनिट, आपकी 4 यूनिट्स होने वाली हैं. फर्स्ट यूनिट इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इट्स कंटेस्टेड ऑरिजिन्स. In this unit, we are going to discuss the meaning of international relations, what are its contested origins, what is the meaning of contested origins, how international relations as a subject originated from. ये international relations शुरू कहाँ से हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसको करने का रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 1 के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बिग बैंग थ्योरी का क्या रिलेशन है इंटरनेशनल रिलेशन से, IR से, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. डी कॉलोनियल अकाउंट्स क्या होते हैं, जियोनोलॉजी क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस की डिसिप्लिन ऑफ इंडिया से रिलेटेड. सेकेंड इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. ओवर द टाइम इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे समय के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन के मीनिंग बदले हैं, कैसे इसके जो इसके प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐड हुए हैं. रियलिज़म, लिबरलिज़म, मैक्सिमलिज्म, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं. और इसकी थ्योरीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से स्कॉलर्स ने क्या क्या थ्योरीज़ निकाली है, क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट रहे हैं, ये हम यूनिट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं. यूनिट 3 जो है इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसे रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट इज योर पावर. ओनली अ पावरफुल पर्सन फ्रॉम अ कंट्री कैन हैव इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम अनदर कंट्री. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री. तो 2 कंट्री के आपस में रिलेशन कैसे होगी जब वहाँ के पॉलिटिकली एम्पावर्ड पीपल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री दे आर गोइंग टू मेक सम promises and they are going to do some trade. This is how people interact for international relations. Sovereignty. What is the meaning of sovereignty is what we are going to discuss here. Okay, so sovereignty means the ability to govern a government. Sovereignty का मतलब होता है the ability of a government to govern itself, कि कोई देश अपने आप को कैसे चला रहा है, उनकी sovereignty क्या क्या है. ठीक है. थर्ड इज योर एम्पायर. एम्पायर हियर रिप्रेजेंट्स द कंट्री, a country as a whole, how it is represented on an international level. Fourth is your international order. Your fourth unit is global international relations and relational turn.
Okay, in this unit we can discuss it, we can discuss this in the unit because it is an entirely different topic, so we might have to give this a little more attention. So unit 4 is important. Now without wasting the time, let us discuss unit first, which is what is international relation and its contested origins. If I have to give you a proper definition, then international relation and its contested origins is the study of how countries, organizations and people interact globally, covering politics, economics, war and cooperation. इसका मतलब होता है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कैसे अलग अलग देश, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है एमएनसी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर हमें बहुत सारी कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसीलिए उन्हें भी इसके अंदर काउंट किया गया है. ठीक है. Multinational corporations and people interact globally, how we as a population are seen on an international level, covering politics, in which politics is most important, economics, what is the economy of the country, war, what is the situation, what is the relation of countries within each other, or whether there is any country in which they have war with one another, and cooperation, how they are cooperative with each other. ठीक है. यहाँ पर कॉपरेशन के अंदर हर तरह के रिलेशन आते हैं. ठीक है. यहाँ पर हर तरह के ट्रेड एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस यहाँ पर सभी जो है इंक्लूड होगा. So this is the official definition of international relation and its contested origins. Now let us understand, IR is a significant branch of political science. It is the most important branch of political science. Why? Because it represents a country on an international level. It involves the study of political, economic, social and cultural relations occurring among various countries of the world. यहाँ पर आप पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल रिलेशंस को विद इन कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं. प्रीवियसली द स्टडी ऑफ IR वाज लिमिटेड सोलिली टू द रिलेशन बिटवीन स्टेट्स. प्रीवियसली यानी जब शुरू में इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका मीनिंग सिर्फ एक स्टेट का दूसरे स्टेट से क्या रिलेशन है, यहाँ पर स्टेट जो है कंट्रीज़ को कहा गया है. ठीक है. तो पहले किन्हीं भी दो स्टेट का भी हो सकता है. ठीक है. इंडिया के दो स्टेट का, या फिर इंडिया का और जो आप कह सकते हैं चाइना का क्या रिलेशन है, इंडिया का बांग्लादेश का क्या रिलेशन है. तो इन्हीं क्लोज नेटेड कंट्रीज़ को भी स्टेट्स बोला जाता था. तो यहाँ पर पहले सिर्फ रिलेशन होता था कि अच्छा उस कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, बस ये था कि ओके उन दोनों कंट्रीज़ की अच्छी बनती है, पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छी है, दैट्स इट. दैट वाज व्हाट द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन रिप्रेजेंटेड during the 1800 and 1900s. However, in modern time, the scope has expanded significantly. Over the time, इस definition को भी काफ़ी ज़्यादा evolve किया गया है इंटरनेशनल रिलेशन की को. आज के टाइम पे ये encompass करती है नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स किनको बोला गया है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को. जैसे टाटा एज अ कंपनी इंडिया को एक बहुत बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. और जैसे अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है फेसबुक, अमेज़ॉन, वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज़ जो एक कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती हैं, और जो एमएनसीज़ एक कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. जैसे स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला हो गया. आपने बहुत बार देखा होगा इलोन मस्क को जो है उसके साथ, अपने प्रेसिडेंट के साथ, अपनी कंट्री के. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एट द लेवल ही इज, ही कैन मेक और डिस्ट्रॉय अ इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एज अ नॉन एक्टर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है. इंटरनेशनल रिलेशन सीक्स टू अंडरस्टैंड वाई कंट्रीज कोऑपरेशन. इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आप समझेंगे कि क्यों दो कंट्रीज अपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, उनके बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, और हाउ ग्लोबल प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व, और कैसे ग्लोबली अगर किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम अराइज होती भी है तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है.
In the modern era, the study of IR is of paramount importance. It means it is the uttermost important topic because the world is rapidly moving towards globalization and countries are becoming increasingly interdependent both economically and politically. Many countries we have seen that they are interdependent on each other. Why? Because no country in the world is self sufficient. कोई भी देश अपने आप में self sufficient नहीं है. कहीं पर तेल नहीं है, कहीं पर तेल है तो वहाँ पे उनके पास राइस या फिर वीट की कमी है. अगर उनके पास वो चीज़ें हैं तो कई कंट्रीज़ पल्सेस नहीं वो कर पा रही हैं. तो हर किसी कंट्री के पास किसी न किसी चीज़ की दिक्कत होती है और इसीलिए वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहती है, जिसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है ट्रेडिंग. ट्रेड किया जाता है प्रोडक्ट्स को, ठीक है, उनको आपस में ट्रेड करती हैं वो, कोई किसी चीज़ के बदले किसी भी चीज़ को दिया जाता है. सो दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट बिगिन. ठीक है, okay, what is so now let us study what is international relations, debates regarding its origins. देर आर बहुत सारे स्कॉलर्स के ओवर द टाइम अलग अलग व्यूज़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर. क्यों ये स्टार्ट हुआ था? बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया 1648 के बाद आया था. अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया क्या है? देखो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया ये एक टाइम पीरियड है जो 1648 के बाद स्टार्ट हुआ था और ये कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद. क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी मेजर कंट्रीज़ थी जैसे यूएई, यूके, अमेरिका, ये कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी. इंडिपेंडेंट होने के बाद इन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम को ओरिजिनेट किया, ट्रीटी ऑफ सॉवरेंटी निकाला जहाँ पर सेल्फ गवर्न कर रही थी कंट्रीज़. तो उस टाइम पीरियड को ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया माना गया है क्योंकि वहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन उत्पन्न हुआ और फिर धीरे धीरे इसका मीनिंग जो है बढ़ता गया और ये धीरे धीरे इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि ये ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा. ठीक है, अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न स्टेट सिस्टम. ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया ने मॉडर्न स्टेट सिस्टम निकाला. मॉडर्न स्टेट सिस्टम क्या कहता है कि भी सभी कंट्रीज़ को जो है सॉवरेंटी बनना पड़ेगा, उन्हें अपनी कंट्री को खुद से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. However, other scholars argued that the history of international relation updated this period. कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो हिस्ट्री है इंटरनेशनल रिलेशन की, उन्होंने इस पीरियड को प्रीडेट करके रखा था क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था. बहुत सारे स्कॉलर्स को लगा था कि ये ओवर द टाइम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है. Activities such as warfare, treaty marking and diplomacy were evident even in the ancient civilization. वॉरफेयर होना, ट्रीटी मार्किंग, यहाँ पर जो है कंट्रीज़ के एक बॉर्डर को मार्क करने वाला जैसा होता था. ठीक है, और डिप्लोमेसी का क्या मतलब है कि कैसे डिप्लोमेट्स कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिटिकल एम्पावर्ड पीपल कैसे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे डिप्लोमेसी अपनी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है, ये एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर भी ये चीज़ें देखी गई थी. वॉरफेयर करना, ट्रीटी मार्किंग करना, डिप्लोमेसी करना, ये सब एंशिएंट सिविलाइजेशन से यूज़ होता आ रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है. मैनी स्कॉलर्स हैव कैरेक्टराइज्ड इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ यूरोसेंट्रिक डिसिप्लिन. बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना गया है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, ये यूरोसेंट्रिक डिसिप्लिन का एक सब्जेक्ट है, ये यूरोपियंस के लिए है, हमारे लिए नहीं है. ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि यूरोसेंट्रिक डिसिप्लिन का मतलब होता है एक ऐसा एकेडमिक फील्ड जिसके अंदर यूरोप के अंदर जो भी चीज़ें हुई है, यूरोप ने जो भी हिस्ट्री एक्सपीरियंस की है, यूरोप की जो वैल्यूज़ हैं, यूरोप का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, वो सभी चीज़ें काउंट करी जाएंगी और उसे ही नॉर्मल माना जाएगा. मान लो कि अगर यूरोप ने एक दिन के अंदर 500 लोगों को मार दिया, तो अगर कहीं पे ये हर जगह नॉर्मल माना जाएगा कि अगर यूरोप ने ये 500 मारा है तो हर जगह ये चीज़ नॉर्मल ही होगी. हाउएवर दैट इज़ नॉट ट्रू. ऐसा माना गया है कि जो यूरोपियन कल्चर था वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर था, वो एक प्राइमरी एजेंट है हिस्टोरिकल प्रोग्रेस का. ऐसा यूरोसेंट्रिक डिसिप्लिन का मतलब होता है. और बहुत सारे स्कॉलर्स जो इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं और उनका ये भी कहना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट है वो ये यूरोपियंस के लिए है, ये यूरोपियंस ने इम्पोर्टेंट माना है,
तो उन्हें लगता है कि सबको इम्पोर्टेंट मानना चाहिए. हाउएवर दैट इज नॉट ट्रू. दिस implies that the majority of IR scholarships has been conducted from the perspective of Europe and Western nations. और इसीलिए एक ये भी थ्योरी निकल के आई है कि जो बहुत सारी इंटरनेशनल रिलेशन की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो यूरोप एंड वेस्टर्न नेशन का ही एक पर्सपेक्टिव है. उन्होंने अपने भले के लिए ही ये निकाली है ताकि इंटरनेशनल रिलेशन को एक वर्ल्ड लेवल पर बनाया जाए और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाए. Consequently, there is a growing demand today to incorporate the perspective and ideas of Asia, Africa and Latin America in the field of IR. अभी बहुत सारी ऐसी डिमांड हुई है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूरोपियंस के पास ही अच्छी चीज़ें हो, भाई एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के पास भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं देने को, और इसीलिए उन्हें भी इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए. ठीक है, हर कंट्री का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट होता है एंड पीपल आर डिमांडिंग दैट एवरी पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ एवरी कंट्री शुड बी इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ सब्जेक्ट. व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस? International relations is a field of study dedicated to understanding the relation and interaction among independent states. Independent states के relations को और interactions को study करना, ठीक है, और कैसे उन studies से हम एक human population को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उस चीज़ को define करना. इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड होगी, डिप्लोमेसी, वॉरफेयर, कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. यस, डेफिनेशंस बाय प्रोमिनेंट स्कॉलर्स. बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं. और सो द फर्स्ट इज योर हांस मोर्गेंतो. हांस मोर्गेंतो asserted that international politics is a struggle for power. इनका मानना था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये एक स्ट्रगल है पावर के लिए, यानी कि कंट्रीज अब एक दूसरे के ऊपर पावर दिखाना चाहती हैं और इसका किसी के भले के लिए कोई लेना देना नहीं है, वो बस पावर के लिए इसे करना चाहते हैं, ऐसा हांस का मानना था. सेकंड इज योर चार्ल्स स्लिंचर. अकॉर्डिंग टू हिम IR इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन स्टेट्स. इनका मानना था कि IR जो है दो स्टेट के संबंधों को रिप्रेजेंट करता है. थर्ड इज योर स्प्राउट एंड स्प्राउट. उनका मानना था कि IR इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड पॉलिटिकल कम्युनिटीज़. ये कहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ और पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ के बीच में जो संबंध है वो इंटरनेशनल रिलेशन जो है दिखाता है. हार्टमन का मानना था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच स्टेट्स अटेम्प्ट टू सिक्योर देयर नेशनल इंटरेस्ट. इनका ये मानना था कि इस सब्जेक्ट से जो स्टेट्स हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने देश के भले के लिए जो है ट्रेड कर पा रहे हैं, और ये जो है उनके भले के लिए ये बनाया गया है. इन सिंपल टर्म्स इंटरनेशनल रिलेशन इज इक्वल टू द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑकरिंग बिटवीन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. इस दुनिया के हर कंट्री का दूसरी कंट्री से जो भी नाता है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंक्लूड होता है. अब वो इंडिया चाइना का हो, इंडिया रशिया का हो, अमेरिका ईरान का हो, अमेरिका इराक का हो, ब्राज़ील का या फिर लैटिन अमेरिका का हो. ठीक है. स्कोप एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज़ वेरी ब्रॉड. पहले ये एक नैरो अप्रोच हुआ करती थी, बट ड्यू टू द लिबरलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन द मीनिंग हैज़ इवोल्व्ड ओवर टाइम. ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बन गया है. द स्टेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ IR. IR का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टेट. एवरी स्टेट फॉर्मुलेट्स अ फॉरेन पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट. हर एक स्टेट अपनी एक जो है अपनी इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक फॉरेन पॉलिसी निकालता है जिसे नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं. स्टेट्स इस्टेब्लिशेस रिलेशंस विद अदर कंट्रीज थ्रू ट्रीटीज, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी. दूसरे देशों के साथ ट्रीटी, ट्रेड और डिप्लोमेसी से वो अपने संबंध बनाते हैं. नॉन स्टेट एक्टर्स. इन मॉडर्न डे टाइम्स देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी MNCs हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती हैं. ठीक है. यस. These organizations work on global issues such as human rights, the environment and development.
Power. Power is the most significant element of international politics. Power nations influence the international order. जो भी powerful nations है वो international order को influence करती है. That is true. जैसे China is itself a whole country, which is why it is the most important. ये हमारी दुनिया का 15.45 ट्रिलियन डॉलर को रिप्रेजेंट करता है चाइना. फिर उससे भी पहले अमेरिका आता है, पहले अमेरिका आएगा, फिर चाइना आता है, फिर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो है वर्ल्ड लेवल पर अपनी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं. तो जो भी जैसे ये कुछ ना 22 स्टेट्स हैं जिनके अंदर फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, ये कुछ 22 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल ऑर्डर को कंट्रोल करती हैं. टाइप्स ऑफ पावर, कितनी तरह की पावर होती है? मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, कल्चरल पावर. नेशनल इंटरेस्ट. किसी भी कंट्री का एक सबसे बड़ा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन पॉलिसी को प्रोटेक्ट करना अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए. फॉरेन पॉलिसी क्या होती है भाई? फॉरेन पॉलिसी के अंदर किन्हीं भी दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है अपने नेशन के हित के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है ताकि आगे जाके कोई भी कंट्री उस कंट्री के साथ जो है फ़ायदा ना उठा सके या फिर वहाँ का नुकसान ना कर सके. नेशनल इंटरेस्ट इंक्लूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल प्रेस्टीज. फॉरेन पॉलिसी जो है एक वो स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू which a country establishes relation with other nation, focuses influencing. Foreign policy include political system, economic situation and geography and culture. International organizations help foster cooperation among nations. For example, the United Nations, World Bank, International Monetary Fund. ठीक है. The objective of these organizations includes maintaining peace and promoting economic development. इन organizations के होने का एक ही कारण है कि सभी देशों के बीच पीस बनी रहे. वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री का नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में एक सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कोई भी कंट्री इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है. और इसीलिए ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम है इस दुनिया में पीस बनी रहे और सभी जो है जितना हो सके वॉर से दूर रहे. Global issues. IR involves the study of various global challenges such as terrorism, climate change, global pandemics and refugee crisis. IR के अंदर ऐसे कुछ global challenges आते हैं जिनके अंदर वो as a whole रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल इश्यूज़ को. जैसे टेररिज्म है, कोई भी कंट्री अगर टेररिज्म को प्रमोट करती है तो वो एज अ सभी कंट्रीज़ मिल के वो डिसाइड करती है कि भाई उस कंट्री को सपोर्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है. असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन एकेडमिक डिस्कोर्स. अब इंटरनेशनल रिलेशन का एकेडमिक डिस्कोर्स के अंदर क्या लेना देना है? इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि मल्टी डायरेक्शनल सब्जेक्ट है. हर तरह से इंटरनेशनल रिलेशन को यूज़ किया जाता है. इसका कोई एक स्ट्रीम नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन में जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है. इसके अंदर हर तरह के टॉपिक को इंक्लूड किया जा सकता है जब तक वो एक नेशन को, एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो. इट इज़ इंटरकनेक्टेड विद वेरियस अदर डिसिप्लिन सच एज पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी एंड लॉ. अब लॉ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो इसीलिए इसे मल्टी डायरेक्शनल भी कहा गया है. द स्टडी ऑफ IR हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ग्लोबल पॉलिटिक्स. ग्लोबल पॉलिटिक्स समझने में मदद करता है. वी कैन कॉम्प्रीहेंड वाई वॉर्स ओकर. और इंटरनेशनल रिलेशन की मदद से आप समझ पाएंगे कि वॉर्स क्यों हो रहे हैं और कैसे पीस बना के रखी जा सकती है. हाउ इंटरनेशनल कोऑपरेशन कैन बी fostered. In contemporary times, the significance of IR has grown further due to the rapid pace of globalization and increasing interdependence among nations. अब इसके 3 लेवल होते हैं एनालिसिस के. फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल लेवल. इस लेवल के अंदर ये फोकस करते हैं रोल्स प्लेड बाय लीडर्स एंड इंडिविजुअल्स. भाई एज अ लीडर आप क्या
जो है कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो. ऑफन द डिसीजन मेड बाय द लीडर एक्सर्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. लीडर के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो एक इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जैसे लीडर्स आइडियोलॉजी, पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज. सेकेंड इज योर स्टेट लेवल. दिस लेवल एग्जामिन्स द इंटरनल कोऑर्डिनेशंस ऑफ स्टेट्स, कंडीशंस ऑफ स्टेट. भाई स्टेट के अंदर कैसी कंडीशंस है, डेमोक्रेटिक कंडीशन है या नहीं है, वो पीस को प्रायोरिटाइज करते हैं या नहीं करते, अपने स्टेट के लोगों को कैसे रख रहे हैं, जहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल फ्रेमवर्क जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं फैक्टर्स को देख के काउंट किया जाता है. थर्ड इज योर सिस्टम लेवल. दिस लेवल एग्जामिन्स द एंटायर इंटरनेशनल सिस्टम. पूरा का पूरा सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड होता है. इंटरनेशनल सिस्टम को स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को, कि किसके पास सबसे ज़्यादा पावर है और उस पावर को बैलेंस कैसे किया जाता है. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ब्लॉक्स. कोल्ड वॉर जब चल रहा था उस टाइम पे जो दुनिया है वो 2 हिस्सों में, 2 ब्लॉक्स में बट गई थी. अब देखो समझते हैं सबसे पहले कि कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है. देखो कोल्ड वॉर एक पीरियड ऑफ टाइम है 1945 से 1991 का, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में. अब ये कोई वॉर वाली सिचुएशन तो नहीं थी, बट क्लियर था कि जो यूएस के पॉलिटिशियंस एंड यूएसएसआर के कम्युनिस्ट्स जो हैं वो आपस में एग्री नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो 2 ब्लॉक्स में बट गया. वो जो यूएस को सपोर्ट करते थे और वो जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे. ठीक है, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल कमबैक था, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइवलरी चल रही थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में. ठीक है, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, तो उसे जो है कोल्ड वॉर कहा गया है. इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी. ठीक है, ओवर द वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी, एंड इसे कोल्ड वॉर कहा गया है क्योंकि इसने वर्ल्ड को 2 ब्लॉक्स के बीच में बांट दिया था. Now the study of Big Bang. According to Big Bang theory, IR emerged suddenly as an academic discipline. Big Bang का मानना है कि जो IR है वो एक अकेडमिक डिसिप्लिन की तरह इंट्रोड्यूस हुआ है. इट डेवलप्ड occurred primarily after the First World War. इसको शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट जो है वो उत्पन्न हुआ, ऐसा बिग बैंग का मानना है. द स्टडी ऑफ IR began in universities for the first time in 1990. 1919 के अंदर पहली बार इंटरनेशनल रिलेशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाना शुरू किया गया. इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द वॉर. इसका शुरू इसीलिए हुआ था क्योंकि स्कॉलर्स समझना चाहते थे कि भाई ये वॉर हुआ क्यों, एंड आगे होने वाले वॉर्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. और इस थ्योरी का मानना है द फॉर्मल स्टडी ऑफ IR commenced in the modern era. और इसे जो है कॉमेंट्स का मतलब है कि IR को एज अ सब्जेक्ट लागू किया गया था मॉडर्न एरा के बाद. मॉडर्न एरा कब शुरू हुई था? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. The onset of decolonization. After the Second World War, colonial rule began to come to an end across the globe. Second World War के बाद colonial rule जो है वो बंद होने लग गया across the globe. Many countries in Asia and Africa attained independence. कॉलोनियल रूल ख़त्म होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ को एशिया और अफ्रीका में इंडिपेंडेंस मिली और इसे ही डीकोलोनाइजेशन कहा गया है. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, क्या क्या परिणाम हुए? न्यू इंडिपेंडेंट नेशन बनने लग गई दुनिया के अंदर. पार्टिसिपेशन इन नए नेशंस का जियोपॉलिटिकल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ने लग गया. अब क्योंकि कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई है तो वो भी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर दिखाना चाहेंगी. द ग्लोब बैलेंस्ड ऑफ पावर शिफ्टेड. अब ग्लोबल पावर शिफ्ट होने लग गई क्योंकि सभी कंट्रीज़ अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहती है. द इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन इंडिया. द स्टडी ऑफ IR इन इंडिया डेवलप्ड रैपिडली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत जल्दी ये जो है इस सब्जेक्ट डेवलप होने लग गया. इंडियन स्कॉलर्स एंडेवर टू इंटरप्रेट IR एज फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव. अब IR की एक नई जो है
डेफिनेशन निकाली गई इंडियन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। इंडियंस फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्टडी ऑफ आईआर। फॉरेन पॉलिसी की जो स्टडी है उससे भी स्टडी ऑफ आईआर जो है वो इन्फ्लुएंस हुई है। आईआर बिगिन टू बी टॉट एज अ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट इन न्यूमेरस यूनिवर्सिटीज़। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आईआर को एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाने लग गया। द नीड ऑफ इंडियन थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बहुत लंबे समय तक आईआर जो है वो रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजीज। आईआर को जो है सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सिर्फ वेस्टर्न व्यू से ही देखा जाता था कि ठीक है भाई जो वेस्टर्न पीपल है वो इस चीज़ को ऐसे व्यू करते हैं तो यही नॉर्मल है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ इसेंशियल टू इनकॉर्पोरेट द इंडियन पर्सपेक्टिव इन द फील्ड ऑफ आईआर एज वेल। और इसीलिए ज़रूरी है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखा जाए। ज़रूरी नहीं है कि अगर वेस्टर्न लोगों का मानना है कि डेली मतलब कि वो जो है एक दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि वेस्टर्न पीपल के अंदर जो है चोरी करना गुनाह नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली कि अगर वेस्टर्न पीपल आइडियलाइज करते हैं कि थेफ्ट इज़ नॉट अ क्राइम, इट डजंट मीन दैट एवरी नेशन शुड एक्सेप्ट दैट। कुछ लोगों के लिए दैट इज़ अ बिग क्राइम। तो हर कंट्री का अपना एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, क्योंकि हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी अलग होती है। जस्ट बिकॉज यूरोपियंस एंड वेस्टर्न पीपल ये मानते हैं कि आईआर की ये डेफिनेशन है, इट डजंट मीन दैट एवरीवन हैज़ टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। कॉन्सेप्ट सच एज डिप्लोमेसी, पीस, को एग्जिस्टेंस वर ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन के अंदर को एग्जिस्टेंस यानी कि अलग अलग लोगों का एक साथ रहना, ठीक है, और उनके बीच में डिप्लोमेसी होना, पीस होना, शांति, अपने ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करना, ये पहले से ही भारत के अंदर था। आइडियाज पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैन बी फाउंड इन द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा थ्योरीज एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के अंदर भी देखी गई हैं। The conclusion of civilizational values in international relations. It is imperative to incorporate the values of various civilization into the study of international relations. ठीक है, तो जो अलग अलग सिविलाइजेशंस का जो स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशंस पर, वो हर जगह पर इनकॉर्पोरेट करना आसान तो नहीं है, लेकिन इट इनेबल्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। लेकिन क्योंकि हर जगह की एक अलग डेफिनेशन है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने में आसानी होती है, क्योंकि हर कंट्री अपनी जो है अपनी एक आइडियोलॉजी के हिसाब से उस चीज़ को इंटरनेशनल रिलेशन को डिफाइन करती है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कॉन्सेप्ट सच एज वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है कि पूरी जो दुनिया है वो एक परिवार है। नॉन वायलेंस, अहिंसा and coexistence hold significant importance. These values can foster global peace and cooperation. हाँ जी, कंक्लूजन पर आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ये मॉडर्न वर्ल्ड को समझने के लिए। इससे हमें मदद मिलेगी टू कॉम्प्रीहेंड द रिलेशन बिटवीन नेशंस एज वेल एज ग्लोबल चैलेंजेस को समझने में और नेशंस को समझने में हमें मदद करेगा। अगर आप आईआर जो है इंटरनेशनल रिलेशन को एक अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप एक सपोर्टिव रोल जो है बन सकते हैं टू प्रमोट peace, cooperation and development. In the future, it will be essential to incorporate the perspective of diverse civilization and nations into the field of IR. और यहीं पर स्टूडेंट्स हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई एवरी कमेंट। हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ की पहली वीडियो थी। सभी यूनिट्स की इंडिविजुअल वीडियोस को जो है डाला जाएगा, तो अगर आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो आप मिस कर दोगे एंड उसका इम्पैक्ट आपको अपने रिजल्ट के अंदर दिखाई देगा।
ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड अगर आप DU सोल रेगुलर NCEE और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके बारे में आपको अपने सब्जेक्ट्स और यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर DU सोल रेगुलर NCEE के रिगार्डिंग हर एक अपडेट को जो है डाला जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।